morning from Singapore. I'm Hema Dudwal, passionate about wellness, sustainability, and slow life. Of course, today's topic is slow life. So, can you really live a successful life, and that also living in Singapore? Can you leave that all and start all over again? कहाँ पे जाके? हिमालयाज में जाके. So, can you do that? वेल आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. Singapore to Himalayas, a family that chose freedom over comfort. Welcome to Happiness with Hema. Hema talks from dreams to reality. और आज के स्पेशल गेस्ट हैं आदित्य, जो स्लो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अपनी वाइफ गरिमा एंड 2 ब्यूटीफुल किड्स. सो करते हैं इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन विद आदित्य एंड लर्न how to go about it. Hi Aditya, how are you? Hello Hema ji, I'm absolutely good. How are you doing? I'm absolutely fine and welcome to my space. And आज बहुत मजेदार conversation करेंगे all about to knowing how and all that your beautiful struggle. So I was just telling that how you guys have chosen, you are walking the talk. कि आप लोग नहीं तो लोग जो है वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हाँ हमें जाके स्लो लाइफ करनी है, बट यू गाइज हैव डिड इट ऑल. सो कल मैंने अपना स्टोरी में भी आई हैव जस्ट told people that if you are also thinking something like that, so the best thing is talk to those kind of people, communicate with them, understand a little more, and then so I think this conversation is really going to help those people also who are planning. Absolutely. So before we start, do you want to give a little introduction to all the audience? Absolutely. Hello everybody. So my name is Aditya, and me along with my family, we're a family of 5. We've got 2 kids, my wife and my mother. So we were running the typical hustle culture. We were getting after titles and salaries. At one point, it struck us that this is not the life we want. This is not where we want to grow old. This is not where we want to raise our child. And when we quit our corporate careers, we were in Singapore, and we just left. We just left everything for a very slow life, for much more peace. We wanted time to raise our own kids. We wanted time to grow our own food. We wanted control of our lives back. We often call it as reclaiming our lives and redesigning it our way and ourselves. Like not follow a template, not follow any conditioning that's been imposed on us, because we're just following it because that becomes more like a herd mentality. And nothing wrong about it, but just we wanted to take control of our lives, and that's what we've done. I was very fascinated about mountains always, because I am a mountain person. Like, I was born and raised in Himachal, Shimla. That's my home. My wife is from Uttarakhand. Finally, we came back and just started our life here, and it's been 3 years now. And that's what we're doing now. Well, बिल्कुल, I totally agree, Aditya. हमारी life पे पूरा control होना चाहिए, and you guys are having that, right? So, Aditya, whenever, I think not me, but anyone else also, जो आपकी profile देखते होंगे, तो उन्हें लगता होगा, वाह, क्या life है. Like, 2 तरह के लोग होंगे, one set of people must be saying, वाह, what a life. And दूसरे सोचते होंगे कि क्या ये सही है, या मतलब is it possible? So let's start my question with the first thing कि अगर आपको 2020 वाले सिंगापुर, like when you were there, 2020 में वापस छोड़ दूं, और मॉर्निंग आपका जो है मंडे मॉर्निंग स्टार्ट होगा, तो वो ऑफिस जाने का टाइम होगा, अलार्म बजा होगा, तो क्या आप स्नूज मारेंगे या फिर कहेंगे कि मुझे पहाड़ों की तरफ जाना है? So I would like to know your journey from Singapore to Himalayas, where you are presently in Uttarakhand, and what inspired this decision and how it unfolded. थोड़ा सा डिटेल में बताइए. Absolutely. So I think most of the people who generally ask us, like, people wanted to know कि भाई आप वापस गए तो गए कैसे? मतलब बहुत स्ट्रेस होगा लाइफ में, a lot of pressure, waking up to alarms and routine, वो था भी है. सिर्फ I'm talking about waking up the alarms वाला situation था, but my work life didn't have a lot of stress, to be honest. Okay. In fact, मेरा बहुत comfortable work life balance था, and I was not at all pressured in any possible way. I was having a very great time working in the organization I was working. My career was going fine, it was growing, it was flourishing. Okay. So generally we tend to feel कि इतना burnout हो चुका होगा कि आप wrap up करके निकलते. So that wasn't the case, honestly. But I think हमारी चाह इस लाइफ की इतनी ज्यादा थी that the career comfort, career की growth और salary का comfort, that couldn't hold us back in Singapore. So Singapore में आके one great thing that happened was, like, before Singapore we were of course we're still in India, but हमारी careers Bangalore से when we transited to Singapore,
that's where we became a parents for the first time. हमारा पहला बच्चा who's now 7 years old and the younger Right. one is 1 year old. Hmm. So he was conceived while we were in Singapore. Hmm. And वहाँ से things flipped. I think we often said कि हमारी औकात नहीं थी. It wasn't our capability to think like this and think of reimagining life this way. वो Hmm. बच्चे अपनी कुछ विजडम लेके आते हैं, वो अपनी एक जर्नी लेके आते हैं, and we surrendered to that. And वो Mm-hmm. बच्चा, हमारा बच्चा जब पहला बेटा आया, he drastically changed so much in our own minds that we started to question norms. We started to question कि यार ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, is this what we signed up for? Like when बचपन की conditioning होती है ना कि right from school, college, cultural, social, familial, हर angle से everybody is telling you to provide, to grow, to make money. किसने ये Yeah. नहीं बताया कितना, हमने ये सबने तो बोला कमाओ, ये नहीं बताया कितना कमाने की कितना? आवश्यकता है. So we started to question that. जब our child was still in my wife's womb, वो बाहर भी नहीं आया था हमारे हाथों में. We started to question कि schooling क्या कराना है इसका, या life हम कैसा जीना चाहते हैं. So I think that was one major trigger point when we were in Singapore. Actually, actual journey उससे भी करीब 4 साल पहले start हो गई थी, या 3 साल पहले. About Okay. our mindset to go back at some point, but that was much older. We thought कि हम 40-45 तक retire होके जाएंगे वापस. But जब बच्चा आया and we actually started to feel यार we need time with him. We brought him into this world और हम we need to be available as parents. We need to be the primary caregiver. The primary caregiver in our kid's life Mm. cannot be a random stranger whom we hand him over to एक स्कूल में 12 साल के लिए और वहाँ रेज होके वो हमारे पास आ जाएगा. तो Mm. and I'm not saying it from a sense of judgment. This was just our personal call. तो वो चीजें वहां से बहुत फ्लिप हुई. हम खाने को क्वेश्चन करने लगे. While सिंगापुर में Mm. खाना you get very nice different kind of foods, vegetables from across the globe. But when Mm. we actually studied the supply chain, it was also very genetically modified food. Absolutely. In many Mm. cases laden with chemicals, और जो organic food था was extremely expensive. Expensive. Yeah. Mm. तो वो सारे केसेस स्टार्ट टू हिट अस बैक. हम इसी के लिए तो कमा रहे हैं, खाना पानी बच्चे, ये मतलब फॉर आवर लाइफ, फॉर बेसिक नीड्स. अगर Yeah. Basics. वही कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, सो देन देयर इज नो पॉइंट बीइंग इन द स्ट्रक्चर. तो हम लाइफ में चेंजेस कर रहे थे, एंड आवर लाइफ केम टू अ पॉइंट वेयर वी न्यू वी हैड टू टेक इट टू अनदर लेवल. लाइक सिंगापुर रहते हुए भी हम ऐसा लाइफ जी रहे थे. Mm. समटाइम्स वी ऑफन मजाक में बोलते हैं हम अपनी ग्रैंड मास को भी वी कैन पुट देम टू शेम. मतलब हमने अपना Mm. लाइफस्टाइल ऐसा कर लिया था, वेरी वी वर ड्रिवन बाय अ लॉट ऑफ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स. Yeah. लाइफ खाना पीना आबाद. हम अपना इंडिया ट्रैवल करते थे ओनली टू ब्रिंग आर राशन, जो हम अपने गाँव से सोर्स करके लाते थे. Mm. Mm. तो इमेजिन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए इंडिया जा रहे हैं बस. I know. बट ऑफ कोर्स सूट केस, मतलब लार्ज केसेस फुल ऑफ इट. तो हम वहां से करने लगे. हम सब्जियां वगैरह थाईलैंड से सोर्स करते थे, ऐसा ऐसा. बट मैंने कहा दिस नॉट सस्टेनेबल, दिस नॉट राइट. अल्टीमेटली अगर हम वो भी देखें, उसका भी जो कार्बन फुटप्रिंट है बहुत ज्यादा है. एंड Yeah. अगेन Yeah. दिस नॉट सस्टेनेबल फॉर अस. Mm. तो हमने कहा कि चलो ये सब रैप अप करते हैं. लेट्स टेक कंट्रोल ऑफ सप्लाई चेन, आर किड्स, आर ग्रोथ और आर पीस. तो वहां से फिर सिंगापुर में हमने किया कि हमने अपने आप को एक नंबर दिया था इनिशियली. आई थिंक दिस वाज 2022 का बिगिनिंग, नहीं का एंड, व्हेन वी डिसाइडेड कि यार कि चलो 40 पे विल क्विट. बट जब वो Okay. क्लैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, वो जुनून इतना ज्यादा था ना, वी कुडंट वेट फॉर 40 या 35. वी कॉल इट 2023 के अक्टूबर में वी रैप्ड एवरीथिंग एंड वी सेड लेट्स जस्ट Wow. गो एंड वील फिगर Because इट आउट. normally आदित्य जब 20s में होते हैं ना, लाइक अर्ली 20s में, तो हमें लगता है 40 इज लाइक अ बिग नंबर, तो 40 में रिटायर होंगे, 40 में रिटायर होंगे. जी बट बिल्कुल. हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि मतलब लोग कहते हैं कि आपने एक अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दी, लेकिन मगर मुझसे पूछो तो मुझे लगेगा कि मैं ये कहूंगी कि आपने एक डर छोड़ दिया. एक फेयर होता है ना, देयर इज अ बिल्कुल. फेयर बिहाइंड कि वो 40 एब्सोल्युटली. मतलब करते तो है, लेकिन आपने 35 में यू हैव टेकन दैट डिसीजन कि आपने जॉब छोड़ी और ये स्लो लाइफ की तरफ आप आपने डर छोड़ा, मेरे को लगता है. सो जी आई बिल्कुल. आई एम इंटरेस्टेड टू नो द माइंडसेट शिफ्ट. थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे कि वो स्लो लाइफ की तरफ जो आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ, वो थोड़ा सा कंटिन्यू विद द स्टोरी. जी बिल्कुल. सो and absolutely the biggest core about this transition is the mindset shift. बहुत से लोग समझते हैं कि हम सिंगापुर थे, वो था ना कि बहुत लोडेड होंगे, बैंक भर लिया होगा, ये सब. हम्म. इट इज वेरी मिनिस्क्यूल. फाइनेंसेस ना बहुत बहुत देर में आता है. वी रियलाइज इट नाउ एक्चुअली व्हेन वी स्टार्टेड दिस जर्नी, बिकॉज वी कमिंग ऑल फ्रॉम दिस लेंस ऑफ फियर. हम फियर्स को लेके चल रहे हैं, डर यस. के साथ जीते आते हैं. फाइनेंसेस बिल्कुल सबसे बड़ा बिल्कुल. फियर होता है, बच्चों हम्म. का फ्यूचर का फियर, ये सब लेके चल रहे होते हैं. या. So now looking back, we realize the entire game was about unconditioning and undoing our fear. हमारी जो डर की मेंटालिटी है ना, with पैसा, with बच्चों का वो फ्यूचर, भी it was agree. about that.
तो वो काम बहुत जरूरी था और वो बड़ा ऑर्गेनिकली हुआ, टू बी ऑनेस्ट, समटाइम नहीं, नाउ वी नो ऑलवेज। हम्म ये इट माइट साउंड वेरी क्लीशेड एंड इट माइट साउंड वेरी, वो कहते हैं ना, अध्यात्म वाली जाती, बट हमने सरेंडर किया ऑनेस्टली। हम्म लाइक वी ऑलवेज अगेन कीप कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारी नहीं थी औकात, एंड आज भी लगता है नहीं थी। वो कुछ कृपा होती है, कहाँ से बरसी, वो तो हमें भी नहीं पता, बट कृपा तो थी फॉर श्योर। हम्म बट उस कृपा को बस हमने एक्सेप्ट किया, एम्ब्रेस किया। मतलब लाइफ ने यहाँ लाना था, हमने उसे एम्ब्रेस किया, सो नाउ वी कॉलिंग इट, इट वाज आवर डिसीजन, हम चॉइस से आए। अगर हम इसे एम्ब्रेस नहीं करते तो लाइफ थप्पड़ मार के जॉब से निकाले जाते, यहाँ आते रोते मरते आते, वो वाला साइड होता तो रो रहे होते इसको, लेकिन नोबडी वुड हैव हम्म नोन दिस डिसीजन। तो या होना या तो यही था, हम्म ये अब हम समझ आते। तो वो माइंडसेट शिफ्ट के लिए हमारे पास भगवान बोले, हम एनर्जी बोले, यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस, पित्र बोले, दे जस्ट केप्ट सेंडिंग अस अ लॉट ऑफ थिंग्स आवर वे। तो उसका सबसे पहला काम स्टार्ट हुआ हमारे बच्चे से, जिससे हमने इमोशनल वर्क पे अपना काम किया, बिकॉज वी कैरिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल बैगेज बचपन से, पता नहीं कहाँ कहाँ का। तो हम्म अपनी इमोशनल हीलिंग का, अपनी इमोशनल रेगुलेशन पे एट 35 ईयर्स, मतलब हम दोनों, मी एंड माय वाइफ करमा, हम लोगों ने एज अडल्ट वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवर इमोशन। हल्का सा कुछ हुआ, गुस्सा आ गया बच्चे पे या अपने पे भी, या एक दूसरे पे, या अपने ऊपर हम्म गिल्ट, अपने पे सेल्फ जजमेंट, उस सब पे बहुत काम करना चाहिए। आई थिंक वो एक बहुत कोर था। जब सेल्फ वर्क अपने पे हुआ, फिर कड़ियां मिलती गई टुवर्ड्स सरेंडर। आई वाज हार्डकोर एथीस्ट, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसा नहीं जवानी वाला वो 15-16 साल का, टू वेरी लॉन्ग एक्सटेंड शादी के बाद तक। एंड हम्म हार्डकोर कैपिटलिस्ट, यार ये करना है, पैसा करना है, बच्चा तो तब करेंगे जब हमारे पास इतना मैं कमा रहा हूँ, इतना बैंक में होगा, मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए सेव अप कर लूंगा, एवरीथिंग, हम्म हम्म जो एवरी बेंचमार्क एंड टिक इन द बॉक्स हम कहते हैं ना, कैपिटलिस्ट माइंडसेट का वो टिक। बट वो रैंडम स्लिप हो जाना, और मेरा आज जो लाइफ है अराउंड भगवान, अराउंड परमात्मा, हम्म वो इट्स नॉट इवन ऑपोजिट, ऑपोजिट इज एन अंडरस्टेटमेंट फॉर दैट। वाओ तो वो सब, वो कृपा ही, अब उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बट हाँ हमारे पास ऐसे इमोशनल हीलिंग वाज वन बिग स्टेप फॉर माइंडसेट शिफ्ट। एंड हमने उस पर काम कैसे कैसे चालू किया, वी एक्चुअली स्टार्टेड राइटिंग डाउन हमारे फियर्स, ये कितना पैसा है, कितना कम पैसा है। वी कंटेन्ड आवर एक्सपेंसेस, वी वर लिविंग अ हम्म वेरी सिंपल लाइफ। एंड जो हमने करते करते बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। जब आप सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आपका डर निकल जाता है, आपको पता लग जाता है कि कम में गुजारा हो सकता है। द हम्म लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ सर्टन ब्रांड, एंड मेरा बैकग्राउंड थ्रू आउट फैशन में रहा है, इंडस्ट्री में। ओके तो उसमें तो और भी ज्यादा हमें होता था कि टू बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट स्नीकर्स, लेटेस्ट दिस, लेटेस्ट दैट, सब कुछ। हम्म वो सबको धीरे धीरे कंटेन करना कि इट्स ओके कि अगर मेरा नहीं भी एलिएटेड, इनफैक्ट कुछ फटे कपड़ों को रफू करके भी पहनना पड़े, तो इट डजंट डिफाइन हुआ है। हम्म वो धीरे धीरे हम्म ट्रांजेक्शन करते करते सिंप्लीफाई हुआ, समझ में आया कम में गुजारा हो सकता है, कम में गुजारा हो सकता है तो इतना पैसा चाहिए नहीं, तो डर पीछे रह गया, इमोशनल वर्क, फिर भगवान पे सरेंडर, वो इन सब का मिश्रण हुआ, दैट गेव अस द कॉन्फिडेंस दैट ये वाह अब हम निकल सकते हैं। तो दैट वाज द माइंडसेट शिफ्ट। Wow, I think that's very inspiring actually. Because वही सबसे बड़ा वो होता है, because you know, to fight with your own fears, and when you start conquering that one, तो उसके बाद तो like sky is the limit, right? जी बिल्कुल, So जी slow बिल्कुल। living ये Instagram का aesthetic है, या कभी कभी गैस सिलेंडर, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी भी टेस्ट ले लेते हैं। सो एक दिन का रियल रूटीन आपका कैसा है? द यू नो द रियलिटी ऑफ स्लो लाइफ, द ब्यूटीफुल मोमेंट्स एज वेल एज द चैलेंजेस, आई वुड लाइक टू नो। Sure. See, slow living को often ना, I'll start with a little bit different background and then come to this point. तो slow living का एक बड़ा misconception है, जब हम भी कुछ शेयर करते हैं, lot of people want to connect with us, share our story, बोलते हैं मेरे को भी पहाड़ों पे आना है। Slow living has nothing to do with पहाड़। स्लो लिविंग आप सिंगापुर की हसल में रहते करते हैं, अगेन इट्स अ माइंडसेट जो आप बात कर रहे थे। एब्सोल्युटली, आप दिल्ली के बिन चांदनी चौक में रहते हुए कर सकते हैं, अगर वहां रहते हैं स्लो लिविंग। बिल्कुल। और आई हैव सीन पीपल स्ट्रगल, पहाड़ में आके भी उन्होंने हसल अपना बना रखा है, आज ये, आज वो काम है, ये काम है। सो इट प्ले, हम यहाँ वापस इसलिए बिकॉज दिस इज आवर एंसेस्ट्रल प्लेस, हमारी नेटिव लैंड है, और वी वांटेड टू कम बैक टू द माउंटेन, यहाँ पे भी हमें कुछ काम करना था। So that is our contribution to the mountain. But slow living is again a mindset कि how unhurried can you be? You are not entirely dependent. आप कैसे बंधे नहीं है अलार्म से, रूटीन से, स्केड्यूल से। और अगर बंद भी गए तो उस स्केड्यूल और आराम थोड़ा ऊपर नीचे हो, सब परेशान नहीं हो रहे हैं। यू नो हाउ, मतलब आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आई एम श्योर, व्हेन वी आर बाउंड बाय दीज रूटीन्स और स्ट्रक्चर्स, कैसे हल्की सी भी एक मिसमैच कुछ हो जाता है, कुछ डिविएट हो जाता है प्लान से, वी गेट रेस्टलेस।
अरे लेट हो गया, मीटिंग के लिए लेट हो गया, वो कितना स्ट्रेस हार्मोन शरीर में जा रहा है। या है ना, आज ये मीटिंग हो गई यार, उसने ये नहीं कहा, ये नहीं किया, वो कब आएगा, कैसे आएगा, आज घर में पार्टी है, फ्रेंड्स को बुला, अरे ये लेट हो गया, घर गंदा है, साफ है। राइट, कैसे हम छोटी छोटी चीजों पे पैनिक, चाहे वो इतना सा पैनिक कर रहे हैं, एवरी पैनिक, अगर हम केमिकल बायोलॉजिकली बात करें, स्ट्रेस हार्मोन रिलीजिंग इन अ बॉडी, एक Yes, स्ट्रेस yes. If you हार्मोन। accumulate, yes. City life में people are just ये depression और anxiety, ये सब जो new words आ रहे एग्जैक्टली, हैं जो हमने सुने भी थी थे. So yeah. एग्जैक्टली। तो वो हमारी लाइफ है, स्लो लिविंग, हमें ये समझ में आ गया स्लो लिविंग इज, हाँ इनिशियली हमें भी समझ नहीं था, वी थॉट कि माउंटेन जाके और स्लो लाइफ है, नाउ वी कैन रिफ्लेक्ट बैक एंड सी एंड टेल कि स्लो लाइफ कैन हैपन एनीवेयर, योर Hmm. लोकेशन इज इरिस्पेक्टिव, हाँ लोकेशन थोड़ा बहुत इनिशियल पहले 6-7 महीने के ट्रांजिशन के लिए इट हेल्प। Hmm. तो स्लो लाइफ can happen anywhere, and this is slow life. It's just like you controlling your own life. It is not bound by anybody else's routine, किसी और का मीटिंग, किसी और का कैलेंडर इज नॉट, वो उसका गुलाम नहीं है, अगर वो उसके साथ चल भी रहा है, बट इट्स नॉट एनस्लेव टू दैट एनी रूटीन सिस्टम, तो वो स्लो लाइफ है। सॉरी, Very आपका मेन nice, सवाल। Aditya. I totally resonate with you because मैं भी यहाँ सिंगापुर में रह रही हूँ because of my family, like because my husband is working here. But या I totally can relate because I am leaving. I'm also leading a slow life here. You know, I'm like या अपने pace में, कोई pressure नहीं, किसी का pressure नहीं और अपने pace में काम करो. तो totally, I think I can totally relate with you. Well, with your story, let's move forward. पेरेंट्स बच्चों को हमेशा पूछते हैं कि होमवर्क किया कि नहीं, स्कूल के लिए उठो, स्कूल जाना है कि नहीं जाना. सो आपके घर में सबसे ज्यादा पूछने वाला कौन सा क्वेश्चन है? सो आई आई एज यू आर सेइंग दैट अनस्कूलिंग, आपने बच्चों को होम स्कूल कराया है, लाइक स्कूल से हटा के, बिकॉज वो रैट रेस जो चल रही है उससे हटाया है. ये जी। बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है. सो आई वांट टू नो हाउ लर्निंग happening in your in your family, and what's the routine like for the kids? It might come as slightly as a shocker, but there is no routine for a child. Okay. तो होम स्कूलिंग एंड अनस्कूलिंग थोड़ा डिफरेंट ये हो जाता है। होम स्कूलिंग में यू टीचिंग अ स्कूल्स करिकुलम एट होम, तो बच्चे को आप वही करिकुलम खिला रहे हैं, क्लास 1 का, क्लास है, एज बाउंड वैसे, तो Hmm. वो एक फॉर्मेट है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज एटलीस्ट टिल अ सर्टेन एज वी नॉट इंट्रोड्यूस एनी स्ट्रक्चर, एनी करिकुलम, तो इट्स गोइंग Okay. बाय आवर किड्स फ्री विल। आज उसका उठ के करने का काम क्या मन है, आज उसे Hmm. मिट्टी में ही खेलना है, आज उसे मिट्टी के घर बनाने छोटे छोटे, आज उसे क्रिकेट खेलना है, गांव के बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेलना है, आज उसे पेंटिंग करना है, इज गॉट फ्यू बोर्ड गेम जिसका वो बहुत क्रेजी, आज वो खेलना है फैमिली के साथ, है कोई आ गया गेस्ट उनके साथ। Hmm. तो इट्स वेरी मच ड्रिवन बाय द चाइल्ड, देयर इज नो स्ट्रक्चर दैट Okay. वी इम्पोज कि आज ये कर ले कर ले। इनफैक्ट वी नेवर इम्पोज एनी स्ट्रक्चर, उसने अभी 7 साल तक आज तक एक भी कोई स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कुछ प्रोग्राम ऐसा कुछ किया नहीं है, या जहाँ पे भी स्ट्रक्चर होना है। So this is a very different form. इसमें what we're trying to do is हमारी बस दो प्रायोरिटीज हैं until he hits 8 years. Now we're thinking 10 तक खींचते हैं, अगर if he if his his willingness allows. तो हमारी दो प्रायोरिटीज इन पेरेंटिंग आर टू bring a really deep emotional regulation. He should understand and be able to manage emotions अपने और अपने प्रति जो लोगों के आते हैं. Number Hmm. one. Number two is his connect to nature. He should have a really, really deep connect to the natural world. तो हम Yes. नेचर में रह रहे हैं, फॉरेस्ट जाता जाना, उसका आधा टाइम इतना डेंस नेचर में रहता है और इतने रॉ नेचर में, तो वो खुद ऑटोमेटिकली, उसमें हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ रहा, यू जस्ट समटाइम गिव हिम आंसर्स टू उसकी कुछ डीप क्वेरीज होती है अराउंड फ्लोरा एंड फौना, तो वो हम थोड़ा करते हैं। So in a इमोशनल way, वर्क। Aditya, मैं ये कहूँगी because I have taught in a Indian curriculum school also, back in India, and there I was teaching in DPS school, which is international school. Then here, when I came to Singapore, I was teaching in IB school throughout. So मुझे लगता है एक तरह से आप अपने बच्चों को IB, because IB में भी कोई करिकुलम नहीं होता है, there is no set curriculum, because मैंने जो पढ़ाया है वो छोटे बच्चों के साथ भी पढ़ाया है, तो IB एक्चुअली स्टार्ट होता है, आईबी टेस्ट अगर एग्जाम देना है तो वो 12th 11th एंड 12th, दैट इज द मेन थिंग. लेकिन जो आईबी स्कूल्स होते हैं वो बचपन से बच्चों को, वो कहते हैं ना, इंक्वायरी बेस्ड या प्ले वे मेथड्स, देयर इज नो सेट syllabus, nothing. They go with the flow, just one topic ले लिया, recycling, तो just discuss and talk and research and everything about it. So I think in a way you are providing, if and अगर हमारे कल्चर में भी देखे ना, तो कहते थे 7-8 years तक बच्चों पे कोई प्रेशर मत डालो, let their mind, their इनर, कहते हैं ना, वो आपका एक इनर, वो जो ग्रोथ होती है आपकी इमोशनल
फिजिकल, Absolutely. मेंटल, एवरीथिंग होलिस्टिक ग्रोथ हो जाती है. उसके बाद यू आर very sharp to observe anything. So I think in a way you are Absolutely. providing that. But please throw some light from your angle. Yeah, मुझे बहुत अच्छा absolutely. लगा आपका concept because I तो can relate with that. ये एक्चुअली हमारी एंशियंट विजडम से ही आया था. अनस्कूलिंग तो एक मॉडर्न टर्म है. इफ यू गो Okay. टू बैक टू गुरुकुल सिस्टम, एक 8 से 10 साल, 7 से Gurukul. 10 साल के Yes. बीच में ही Yes. बच्चे जाते. तो उससे पहले दे वर जस्ट प्लेइंग. वो 3 साल, 2 साल, 1.5 साल में जो प्ले स्कूल कल्चर ये सब नहीं था बिल्कुल. नहीं किड्स था. वर, उनका एक ही रोल था, टू क्रिएट प्ले एंड प्ले, बी वाइल्ड एंड फ्री. चाणक्य Yes. नीति में भी यही है कि 8 से 10 साल यस. तक आप यही और कीजिए, वैसे भी उसके कहते बाद हैं ना आदित्य, विद्यारंभ कहते हैं होता ना है. ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि हमारे पहले गुरुकुल सिस्टम ही होता था, तो ये जो ब्रिटिशर्स या जो भी है यू नो दैट कॉलोनियल टाइम के कारण से जो भी हमारा सिस्टम अपरूट हुआ, तो दे हैव ब्रिंग द स्कूल सिस्टम ऑफ यू नो कि अच्छा ये करिकुलम ये वो, तो उससे पहले हमारे ऐसा होता भी नहीं था. सो विच वाज वेरी गुड. जबकि ये जो आईबी सिस्टम है, दिस इज इंटरनेशनल बैकलॉरेट, यू नो आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ बिकॉज इंडिया में भी आ I've गए heard हैं. of it, but I never knew its format. I सो just heard of आईबी it. इज एक्चुअली हमारे गुरुकुल वाला स्टाइल कि उसमें कोई करिकुलम नहीं है. टीचर्स भी लाइक यू नो बच्चों को अपने फ्लो में चलने देते हैं. देयर इज नो सेट ऑफ कि ये करो वो करो. एंड आई थिंक यू आर गिविंग दैट या काइंड ऑफ एनवायरमेंट टू योर चाइल्ड. Could be. Matlab, it's again like it's happening through us. We are not doing it as how we can put it. Yeah, but you But know, yes, so parents yeah, have to take a call to be able to give that, provide that, you know. So you are जी तो able to. Please हमारा take ये credit. शेयर. थैंक यू जी. तो वी वर, हाँ तो यही था कि हमने हमारा ये एंशियंट उससे डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज गर्मा स्टडीड अबाउट इट. एंड आपने Hmm. बड़ी अच्छी बात की, कॉलोनाइजेशन जितना ही मॉडर्न स्कूलिंग है, not coming from any lens of right and wrong, but it was built to support the industrialization. This purpose of Yes. schooling system, if you read the background of it, every thread, and there are a lot of research, a lot of studies, some क्या conspiracy theory नहीं बोलेंगे, it's factual study theory. It They was built. wanted. They don't wanted leaders. They want followers. They They want exactly they wanted obedient workforce workers. for industrialization. असेंबली लाइन, सुबह सुबह असेंबली हो रही है, घंटी बजी तो हाँ. उसका फ्लेक्स चेंज, Yes. एक अथॉरिटी सामने बैठा. दिस नॉट एजुकेशन, Hmm. दिस नॉट टीचिंग, दिस इज यू प्रिपेयरिंग यंग माइंड टू ओबे एंड टू फॉलो अ सिस्टम, ताकि आप जाके कर्मचारी बन पाए भविष्य में. कर्मचारी बन सके, क्लैरिकल तो दैट जॉब्स कर सके, सारे एग्जैक्टली. के तो सारे. एंड हम अगेन सिमिलरली जब हम अनस्कूलिंग पे जा रहे थे, वी रेड अ फ्यू रिसर्चेस. there's a massive research by there's a Cardiff education survey होता है, हार्वर्ड की एक रिसर्च है, द जॉर्ज लैंड रिसर्च है, Gabor Mate, one of the leading psychologists. मतलब our life has been influenced a lot by many of our saints. उनकी philosophy और Hmm. Gabor Mate की, जो कहते हैं बच्चे को आप 10-12 साल तक अगर सिर्फ फ्री आउटडोर प्ले ये करने दें, उससे सक्सेसफुल बच्चा भविष्य में नहीं बन सकता. Hmm. इतने नाम सामने आ जाते हैं, थॉमस एडिसन, आइंस्टाइन, हमारे देश में निखिल कामात, द टन्स ऑफ नेम, अब्राहम लिंकन, जो पीपल Yeah. ब्रोक द सिस्टम, जो सिस्टम से फिर बाहर निकले, एंड दे आर द वन दैट वी लुक अप टू. अरे ऐसे होने चाहिए बच्चे, बट वो तो खुद ही स्कूल नहीं गए. Yes. तो होना. वो सारी चीजें सामने आते जब गई ना, तो समझ में आया ठीक है, इतना जरूरी भी नहीं है. एंड लेट्स, Hmm. और इतना भी पता था मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन नहीं है. वी न्यू वी वर केपेबल इनफ. कल को बच्चे को अगर एजुकेशन की वैसी नीड भी आई, हम इतने सक्षम है अपने बच्चे को पढ़ाने के टिल अ वेरी सीनियर क्लास, और हम उसे ओपन स्कूल से बोर्ड या कुछ दिलवा देंगे 10 स्कूल में. अगेन इसमें Hmm. एक बड़ा इंटरेस्टिंग था क्या, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स डॉटर, शी इज अनस्कूल्ड एंड शी नेवर वेंट टू स्कूल, शी इज 24 नाउ आई गेस. Okay. तो कभी स्कूल नहीं गई. वो जब 10th क्लास में थी, अराउंड 16 इक्वलेंट, तो उसकी Hmm. मोहल्ले पड़ोस में सब लोग की यही बात हो रही थी कि बोझ 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 का एक होता है ना, एक हवा बन जाता है. शी फेल्ट Hmm. शी फेल्ट फोमो कि यार ये सारे फ्रेंड्स यही बात कर रहे हैं. नेवर वेंट टू स्कूल. उसने 2-3 महीने पढ़ के ओपन स्कूल से बोर्ड्स क्लियर कर लिया. ये भी हमें Okay. क्लियर हो गया कि बोर्ड्स क्लियर करने के लिए सर्टिफिकेट के लिए भी 12 साल स्कूल जाने की जरूरत नहीं है. तो अगर Yeah. हमारे बच्चे की वो भी It's नीड आएगी legal. Yes, please. I think we need to inform this to the audience, whoever listening, and the parents who are wanting to, you know, unschool their kids. Ki it's legal in India. Singapore, mein it's not legal though, but it's legal in India and in many countries to, you बिल्कुल. know, just आप अपना बिल्कुल. unschooling करके खुद अपना करें, and एक बार जाके वो ठप्पा तो लगाना है अगर, तो चलो एग्जाम बिल्कुल. देके, you know, you get बिल्कुल. that certification also. बिल्कुल. इवन सिंगापुर में भी यू जस्ट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे अलाउ इट. बट आपको बीच बीच Yeah, में उन्हें बस ट्रैकिंग रिपोर्ट देना पड़ता है, हाउ इट्स गोइंग थ्रू, कुछ बच्चों का एक yeah. रिपोर्ट बना के Mm. देना पड़ता है. Yeah.
So wow, very nice. I think your kids will be very proud आगे जाके that you gave the, you know, because as a parent हम ही उनकी अथॉरिटी होते हैं हमारे अपने बच्चों के, है ना. So अगर हम अपने बच्चों को वो environment दे सकें तो, और वो भी फेयर हटाकर, क्योंकि फेयर के साथ देंगे तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है, पर अगर हम फेयरलेस होके बच्चों को वो इन्वायरमेंट वो एक वो देते हैं ना, तो इट्स लाइक इट्स अ बिग थिंग, यू नो, एंड यू आर डूइंग इट. सो कितने साल हो गए हैं अभी? अनस्कूलिंग के ऊपर, मतलब अनस्कूलिंग हुई बचपन से ही, नेवर बीन लाइक 7 years नाउ. He's never been to school, and but नेवर. I can see he's very, you know, your child is very execute, like he's very uh, they say na, very excited to learn new things and want to do something, you know. So please make some more videos on that so that kids can see that, relate with that ki bhai, you know, how and what communication and everything, because the confidence, because वो कहते हैं ना, वो जो आप एक soft skills होते हैं, जो confidence and then being very excited to learn new things, you know, जी वो भी है. जी everything बिल्कुल is there. बिल्कुल You बिल्कुल. don't see और anything missing, right? अगर हम इस, अगर मैं मॉडर्न जो हम बातें करें इस हिसाब से, देयर वुड बी थिंग्स मिसिंग, बट आई थिंक एक बहुत इसका कोर है जो हम बात करते हैं ना, जो कॉन्फिडेंस वगैरह, व्हाट वी अंडरस्टूड एंड हाउ वी अंडरस्टैंड दैट नाउ. Mm-hmm. इट्स अगेन वेरी हैवी टर्म जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं. Mm-hmm. एक बच्चा शाय भी हो सकता है, हम Mm-hmm. उसकी पर्सनालिटी पुश पर फिर कॉन्फिडेंस लेके आओ, अपने अंदर घुसो, लोगों से बात करो. क्यों? क्योंकि तुम इससे सक्सेसफुल हो जाओगे. Mm. आई थिंक दैट कोर नीड टू बी कंफर्टेबल विद योर सेल्फ इज व्हाट वी ट्राइंग टू डू. That is the real confidence, दैट Aditya, इज I दैट इज द think. रियल कॉन्फिडेंस, बिकॉज Mm. हम एक कॉन्फिडेंस That को you भी are, बड़ा. you know, हाँ. that you are comfortable in your skin A and you are. child sometimes he doesn't want to speak. अगर कोई आ जाता है ना, हेलो हाय कि इससे बात कर लो, बचपन में हमारे पेरेंट्स नहीं करते थे, नमस्ते करो अंकल को, नहीं बात करो, अपने Yeah, बारे में yeah, बताओ yeah. पूरा. Mm. Sometimes he doesn't want to talk. अब मैं रैंडमली अपनी वाइफ को बोलूँ मेरा फ्रेंड ने बात करना है, इससे जा घुस, she'll be irritated as adults, हमें कोई बात Mm. बताए. Yeah, yeah. So we've learned just by our own journey, mistakes and challenges से, we embrace his authenticity. We're not Mm. trying to tame his authenticity. We're not trying to kill his authenticity. अब Mm. वो बड़े होके, जैसे I was a very shy child, Okay. और मेरे पेरेंट्स वही टिपिकल पेरेंट्स, और नॉट राइट और रॉन्ग, बट सेटअप ऐसा था, एनवायरमेंट ऐसा था, नहीं बात करो, इंग्लिश में बात करो, अपने बारे में बताओ, पोएम सुना दो, ये करो. बचपन जो सारी चीजें वो करते हैं ना, वो करते आए थे. Mm-hmm. एंड आई वाज नेवर कंफर्टेबल. इवेंचुअली आई मेड इट ना समहाउ. और मेरे साथ के बहुत से फ्रेंड्स एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट थे, वो भी कर रहे हैं. Mm. जो स्कूल में टॉपर नहीं था वो भी कुछ कर रहा है, जो टॉपर था वो भी कुछ कर रहा है. सो दिस आई रियलाइज एवरीबडी फिगर्स इट आउट. Yeah, तो yeah. माइट एज वेल लेट अस मेंटेन हिज ऑथेंटिसिटी. और अगर वो बहुत कॉन्फिडेंट आ रहा है, लेट इट बी. दैट Yeah. लाइफ बिकम्स हिज ओन लर्निंग. हाँ, वी ट्राई टू मेंटोर हिम जब वो फंसा होता है, कुछ बहुत ही हैवी चेंजेस दिखते हैं. बट ये वाले चेंजेस भी, जब कुछ टर्म्स हमें लगता है कि इसको कुछ, इसके स्किल्स हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, कॉन्फिडेंस हो, वो भी मेरे को लगता है कि कहीं ना वो कंडीशनिंग ही हो जाती है अननोइंगली. Okay. तो वी ट्राई टू नॉट डू दैट. वो हो जाती है हमसे भी अनफॉर्चुनेटली, Mm-hmm. बिकॉज हमारी कंडीशनिंग इतनी डीप है. बट वन थिंग इज लाइफ फॉर श्योर, अनस्कूलिंग बच्चे की करने की जरूरत ही नहीं है. लाइक यू डोंट हैव टू टेल अ सीड हाउ टू ग्रो इनटू अ ट्री. हम बस अपनी अनस्कूलिंग कर रहे हैं, बिकॉज वीव बीन स्कूल्ड एंड वीव बीन कंडीशन्ड. द चाइल्ड हैज नेवर बीन कंडीशन्ड. तो हम बस उसको रोकते हैं. That's a good. Okay, आदित्य, अगर बाई चांस 25 साल के बाद या 20 साल के बाद आपका आपके बच्चे अगर बोलें कि भाई मुझे कॉर्पोरेट लाइफ करनी है, तो उनको आप क्या कहेंगे? आई एम इंटरेस्टेड टू नो, लाइक. आई थिंक 25 तो बहुत लंबा एज हो गया. 12-13 साल के बाद विल गिव हिम द फ्री विल, हिज होल ऑटोनॉमी, व्हाट ही वांट्स टू चूज. अगर वो बोले मेरे को प्रॉपर स्कूल जाना है, मेरे को यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे हसलिंग ही करनी है, इट्स हिज डिसीजन. देयर ये तो, डिसीजन. हाँ, टिल अ सर्टेन पॉइंट, मे बी 12-13 विल नो, बिकॉज आजकल बच्चों की अवेयरनेस, मेच्योरनेस वो 15-18 साल की तरह ही और पहले आती है. वी डोंट नो दैट एज, बट जब भी आएगी, he'll have his own free will and autonomy for every major life decision. तो अगर वो कॉर्पोरेट में जाके करना चाहे और कहीं भी करना चाहे, he'll be his own well, to be honest. वेरी नाइस. बिकॉज ये कैंडिडली मैंने क्वेश्चन इसलिए भी जानना चाहा आपसे कि आप बच्चों पे अपनी विल नहीं मतलब चलाना चाह रहे हैं, और वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट्स द राइट वे. बिकॉज से ना एवरी सोल हैव देयर ओन जर्नी, सो उनको अपने फ्लो के साथ, बट दे आर वेरी फॉर्चुनेट. आई कैन ऑलवेज से दैट योर किड्स आर वेरी फॉर्चुनेट टू गेट द पेरेंट्स लाइक यू, दैट जो उनको उनकी विल के हिसाब से जीने दे रहे हैं, सो that I can always assure I this. think we are fortunate that they made this change in our lives by coming into our lives. Yeah, it's actually both way. Maybe they have triggered
some Yes. shift in your mind that you are able to get rid of those fears. तो वो दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन आई एम श्योर द किड्स, बिकॉज जब तक हम बच्चे हम छोटे होते हैं तो वो दे आर अंडर द बिल्कुल। पेरेंट्स अथॉरिटी, सो यू आर एबल टू. सो अक्षय, आगे बढ़ते हैं कि आजकल पेरेंट्स बच्चों को बेस्ट स्कूल दिलाने के लिए लाखों खर्च करते हैं, जो कर ही रहे हैं. स्पेशली व्हेन यू सी इन सिंगापुर, इवन इन इंडिया, यू आर स्पेंडिंग टू मच. एंड सबसे पर आपने तो स्कूल ही छोड़ दिया, ठीक है, बच्चों बच्चों का कोई स्कूल का खर्चा नहीं है, तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आखिर कहाँ आप सोचते हैं कि आपने किया है? और फाइनेंशियल प्लानिंग, कैरियर ट्रांजिशन एंड टेकिंग सच बिग लीप, लाइक, so I would like to know like how it. Sure. Absolutely. See, our biggest financial investment that has happened since the time हमारा mindset shift हुआ और उस transition से आज तक, Okay. it is on everything that goes inside our body and inside our mind. So surprisingly, हमारे सबसे major expenses are grocery expenses because what we are putting into our body, we have built our own supply chain of food, oils, nuts, कुछ भी होता है. कोई Okay. किस ट्राइब से, कोई किस जगह से, कोई कहाँ का, कोई गाय का, अगर घी है, दूध है, सब everything is what we've invested heavily and वो ही हमारा इंश्योरेंस है. So that is a premium for our insurance. So हमारा सबसे major True. expense after we understood a lot of things is into what we are putting into our body. Secondly, into our mind, into our internal growth. क्या कहते हैं ना, अंदर पे काम करना है. मेरे honestly speaking, अगर and I'm not trying to be flamboyant और मैं दिखावा कर रहा हूँ, मैं बस शेयर कर रहा हूँ. मैंने करीब 13-14 साल फुटवेयर इंडस्ट्री, उसमें से भी 10 साल है वर्क एट अ डिसेंट पोजीशन एट नाइकी जॉर्डन, और मैं उसमें भी स्नीकर्स डिवीजन देखता था. मेरे पास इतने जूते होते थे. सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू, मेरी सैंडल में कम से कम 3-4 जगह टांग के मोची के लगे हुए हैं. Okay. सो बिकॉज आई फील कि अभी भी ये टांगा लगा के काम इससे चल सकता है. बट एट हाँ. द सेम टाइम मेरी ग्रोसरी एक्सपेंसेस ऐसे होंगे, द एक्सपेंस दैट वी डू ऑन आवर सेल्फ एवोल्यूशन, कि कहीं गुरुजियों के साथ कोई इंटरनल वर्क पे, नॉन डूअरशिप पे, हमारे एंशियंट विजडम पे हमें पढ़ना पड़े, क्लासेस लेनी पड़े, कोई गुरु ढूंढने पड़े, वो हमारे मेजर इन्वेस्टमेंट है. जो भी हमारे इंटरनल जा रहा है, एवरीथिंग एक्सटर्नल अब नहीं है. तो दैट इज आवर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट एज Okay. ऑफ नाउ. और हम बच्चे के लिए भी वही ट्राई करते हैं, वो करें. एंड अगर उसकी इंट्रिंसिक नीड आती है, मुझे ये देखना, ये करना, तो वी डोंट हैम्पर इट. वो हमसे शायद देख के कुछ सीख ले. बट मैं और माई वाइफ, दिस इज आवर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट राइट Okay. नाउ, वेयर वी आर. और ठीक है, टॉकिंग अबाउट मोर फाइनेंशियल और मोर इन्वेस्टमेंट पार्ट, जो ट्रांजैक्शनल वाला पार्ट है, did you wanted to know कि how did we manage the expenses about this transaction और यहाँ आके expenses क्या है? If you feel like to share it with the audience because that will help, it's your wish. Yeah. See, very briefly I'd already shared it. हमने अपने लाइफस्टाइल को इतना हम्बल, इतना सिंपल कर लिया था that you'd be shocked कि इतने कम में भी गुजारा हो सकता है. That's तो true. फिर तो एक्सपेंसेस मैटर करते हैं. हाँ, जो अब एक्सपेंस जो ग्रोथ हुआ, दैट हैपेंड टुवर्ड्स खाना एंड आवर ओन सेल्फ ग्रोथ, इंटरनल काम के ऊपर, वो वाले एक्सपेंसेस. सो वी मेड सर्टेन, जो भी हमने कमाया था, वी मेड सर्टेन इन्वेस्टमेंट, जो टिपिकल इन्वेस्टमेंट होते हैं, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, इधर उधर, उससे वो आ रहा है. एंड वंस इन अ वाइल वी रन सर्टेन वर्कशॉप. मेरी वाइफ पेरेंट काउंसलिंग पे काम करती है, चाइल्ड ब्रेन साइंस पे, उनकी वर्कशॉप्स हो जाती है. आई रन वर्कशॉप्स ऑन दिस ट्रांजिशन टू विद अ लॉट ऑफ पीपल. उससे थोड़ी बहुत जो इनकम आ जाती है. We did not earn a single money from our Instagram page because हमने कहा था we'll keep business out of it. This is only to share authentic life with people. तो Instagram से we do not take a single penny. तो वो भी बहुत लोग को लगता है कि ऐसा होता है. तो mainly through workshops और हमारी जो past savings है, we are running on that. But gradually we will also build our own sustainable sources of income because हमारा अभी तक transition unlearning, relearning का चल रहा था. Last 1 year was around our new baby. हमारे बच्चे के Okay. जन्म पे गए. He is just 1 year old. Now he is pretty much more independent than before. तो अब हम will also build some sustainable income source गांव में रहते हुए. Okay. So that's how Very we do nice. it. वैसे भी आई थिंक टोटली राइट आदित्य. हमें कहते हैं ना, फॉर आवर नीड्स वी डोंट नीड टू मच, फॉर आवर ग्रीड्स देयर इज लाइक स्काई इज द लिमिट. उसके तो पीछे जिंदगी भर वो, अरे आपने जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल कहा कि उसका तो कभी भी वो होता ही नहीं है कि एक लिमिट होती है. बिल्कुल. तो फॉर नीड एक्चुअली वेरी लेस, एंड आई थिंक वो सस्टेनेबल लाइफ जो आप जी रहे हैं, आई थिंक इट शुड बी टॉट, एवरी वन शुड लर्न दैट, बिकॉज वही सही. नहीं, वो फैक्ट है वाला. हम जो भी कमा वाला, एक किसी ने एक बार मुझसे शेयर किया था, इट्स वेरी एक्चुअली राइट, कि आप, हम जनरली जो हम बड़ा घर, गाड़ी, बंगला बनाते हैं, कहते हैं बंगला तो हम अपनी ईगो के लिए बनाते हैं, रहते हम एक कमरे में ही हैं. कमरे में. बिल्कुल. रहना तो एक कमरे में ही है. यस.
खैर, माउंटेन्स बदलने से लाइफ बदल गई या माइंडसेट बदलने से माउंटेन्स अच्छे लगने लगे? सो मुझे कुछ कॉमन मिथ बताइए कि कुछ लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं स्लो लिविंग को लेके या अनस्कूलिंग को लेके, क्योंकि आपका जो भी आपके एक्सपीरियंस में लोगों ने आपसे जी इंटरेक्ट किया तो उस दौरान, सो व्हाट यू। टॉप ऑफ द माइंड जो मेरे को सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है ना इसके अराउंड, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक दैट आंसर दिस क्वेश्चन कि माउंटेन से पीस आता है, बिल्कुल गलत। हाँ, माउंटेन से बिल्कुल। बिल्कुल पीस नहीं आता। जैसे कि आपने आई थिंक मेंशन भी स्टार्टिंग किया। भी बोल जाए, यस, माउंटेन या यस। बीच से या किसी भी नेचर से आ सकता है, बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। पीस इंटरनल वर्क से आएगा। बहुत से लोग नेचर में रहते हुए भी ऐसी लाइफ बिल्ड करके भी बहुत परेशान है कि उन्हें काउंसलिंग, थेरेपी, ये सब इतना करना पड़ता है, बिकॉज एक साल तक ही नेचर पाता है, उसके बाद वो नेचर भी काटने को दौड़ता है। तो सही वर्क हैज बात टू है। हैपन इंटरनली। स्लो लिविंग इज नॉट बाउंड बाय एनी स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट, इट कम्स फ्रॉम विद इन। तो वो इंटरनल वर्क और माइंडसेट शिफ्ट है पहले। ट्रू। अनस्कूलिंग के अराउंड में सबसे पहला क्वेश्चन हमें कि भविष्य में क्या करेंगे बच्चे और सोशलाइज कैसे करेंगे, ये दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे कॉमन आते हैं। ओके। इट्स अ लॉन्ग आंसर, मैं थोड़ा ब्रीफली इसे रखता हूँ। आई थिंक आज की एज में वी आर ऑल विटनेसिंग द फैक्ट हाउ एआई एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। या। हम शायद इमेजिन नहीं कर सकते, बट एक टू एन एक्सटेंट हम उससे हक्के बक्के रह सकते हैं 20 साल बाद क्या सिचुएशन होगा। या, तो या। 20 साल की बात करते हैं, अगर मेरा बच्चा तब वो रियल वर्ल्ड में उतरेगा, तो वी नो थिंग्स विल बी ड्रास्टिकली चेंज। तो इतना कॉन्फिडेंस है, बच्चा कुछ ना कुछ कर लेगा विद एआई एंड एवरीथिंग। अपस्किलिंग विल बी वेरी इजी। या। हम कहते हैं बच्चों को बचपन से एआई सिखाएं, एआई बनाई इसलिए एनेबलिंग के लिए, तो बचपन से सिखाने की जरूरत नहीं है, वो एक बूढ़े को भी सिखाएं, वो बहुत सीख इजीली जाएगा। टू ग्रास्प है। या। या। सो दैट थिंग वी नो कि कुछ ना कुछ बच्चा कर ही लेगा। दूसरा, सोशलाइजेशन को लेके अनस्कूल या होम स्कूल बच्चे ज्यादा सोशलाइज करते हैं दैन दे स्कूल पीयर्स। इट्स नॉट मी सेइंग, इट्स टन्स ऑफ रिसर्च कमिंग फ्रॉम elite यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन सेइंग एक स्कूल बच्चा वही 50 बच्चों के साथ 12 साल अलग अलग कमरों में बिताता है और एक अथॉरिटी सीधे सामने का चेंज होता रहता है। तो उसका सोशलाइजिंग सोच लिए कितना लिमिटेड है। वही 50 या 40 जो भी क्लास की स्ट्रेंथ है, वो बच्चे मैक्सिमम टोटली मेजरली। एग्री, टोटली एक एग्री। अनस्कूल बच्चे का डाइवर्स है, 20 साल से लेके 15 साल से अपनी एज ग्रुप से लेके इन्फेंट से लेके बुढ़े, सब उसके एज ग्रुप है, वो बहुत डाइवर्स हो सकता है डिपेंडिंग आप उसे कैसे एक्सप्लोरेशन करने देते हैं। तो अनस्कूलिंग में भी सोशलाइजेशन हो सकता है और बहुत ऑथेंटिक वे में होता है। तो टोटली ये एक एग्री, टोटली टोटली रेजोनेट विद दैट। ओके आदित्य, एक क्वेश्चन जो मेरे दिल के बहुत करीब भी है, और मुझे सच सच बताइए कि अगर इंस्टाग्राम ऑफ कर दिया जाए और कैमरा बंद कर दिया जाए तो क्या स्लो लिविंग उतना ही ब्यूटीफुल है जितना कि हमें रील्स में दिखता है? अपने चैलेंजेस हैं, है ना, एंड वी ब्रीफली टॉक अबाउट चैलेंजेस एंड बहुत ज्यादा नहीं करना है। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट यू मेंशन, हम उसके बारे में और ज्यादा बात कर सकते हैं द चैलेंजेस। बट द ब्यूटी इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चैलेंज एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है। ओके। चैलेंजेस इस लाइफ के अपने हैं और बहुत चैलेंजेस आते हैं, और मोस्टली चैलेंजेस अराउंड फिजिकल लाइफ नहीं है। अगेन मोस्टली चैलेंजेस अपने अंदर से आते हैं, वो डर, फियर, कंडीशनिंग से आते रहते हैं बार बार। सबसे पहला द बिगेस्ट चैलेंज आई हैड वाज अराउंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो बार बार 1 साल 2 साल के बाद तक, अब आई कैन से वो बहुत हद तक हुआ है, बट अभी भी साल 6 महीने में एक आधी बार वो कोई एक ट्रिगर पॉइंट ले आता है, बट आई नो हाउ टू मैनेज इट नाउ। टू मैनेज दैट। I know how to sit with it. I know how to navigate it. Manage is the wrong word, navigate it. तो कंट्रोल नहीं करना, तो वो अपने एक जर्नी आता है। वो इट विल टेक इट्स ओन ब्यूटीफुल टाइम। क्योंकि इमेजिन ना, हमारी मेरी 35 साल की कंडीशनिंग थी, हर एक की अपनी अपनी कितने वर्षों की होगी। तो इट टेक इट्स ओन ड्यू टाइम टू अनडू दैट। तो वो फियर्स बहुत आते हैं और वो चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, वेरी सर्फिश वाले, और कुछ डीप इंटरनल होते हैं, वो सारे इंटरनल। तो फिजिकल लाइफ के हिसाब से देयर इज नॉट मच स्ट्रेस। फिजिकल लाइफ को अगर बोले जो इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, दैट इज प्रीटी मच इक्विवेलेंट, वही हम जी रहे हैं। बट सो इंटरनल ओवरऑल चैलेंजेस लाइक को, कॉन्शियस जो है ना, कहते हैं यू हैव टू लाइक यू आर टेकिंग अ कॉन्शियस लीडिंग अ कॉन्शियस लाइफ, राइट? कि जी कौन सा स्ट्रेस नहीं लेना है, कौन सा नहीं करना है, बिकॉज यू नो दैट बैलेंस शुड बी देयर। अच्छा, मुझे ना कुछ पेरेंट्स से एक मैसेज आया था और उन्होंने पूछा, हेमा जी हमें स्लो लाइफ तो चाहिए पर ईएमआई भी भरना है, उस पर पेरेंट्स को आप क्या, उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? योर मैसेज फॉर द पेरेंट्स एंड फैमिलीज हु आर कंसीडरिंग similar life but then they have
they want to take this path, but they are little, fearful. जी बिल्कुल। See, ईएमआई एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें बांध के रखता है, एंड ये लूप बन जाता है कहीं ना कहीं। तो मैं इसमें पेरेंट्स एंड अपनी मेरी वर्कशॉप में बहुत सवाल आता है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आप ये फ्री पाथ चाहते हैं तो गेट रिड ऑफ एनी लाइबिलिटीज दैट यू हैव एज सून एज पॉसिबल। Okay. अब आपको लगता है वो फाइनेंशियल कंडीशन 20 साल बाद आएगी, लोन ही 20 साल का है, Hmm. तो मे बी उस हाउस को, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल, बट आई एम गिविंग दिस वेग पॉसिबिलिटीज। एक्सट्रीम हार्ड और थोड़ी इजी भी बाद में बताऊंगा। तो मे बी अगर लगता है ये लोन 10-15 साल तक नहीं निकल सकता, एंड यू आर ऑलरेडी 40 एंड यू हिट 50, तो उस एसेट को ही निकालने का, डिस्पोज ऑफ करने का चाहिए, ताकि वो वन टाइम निकल जाए एंड यू वोंट ओन दैट एसेट, दैट्स फाइन। Yeah. बी कॉन्फिडेंट कि आपके अंदर इतना स्किल है, आप इस स्लो लाइफ में आके भी कुछ ना कुछ इनकम निकाल सकते हैं। व्हेन वी से स्लो लाइफ, इनकम नहीं खत्म हो जाता। सो व्हेन वी से वी रिटायर्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट, नॉट दैट वी आर नॉट गोना डू एनीथिंग। लोग पहाड़ों में, छोटे छोटे गाँव में, कोई अपना बेकरी, कोई चॉकलेट बना रहा है, कोई लोग होस्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग चीज बना रहे हैं यहाँ पे। उससे इनकम छोटा है, बट वो उस जीवन के लिए बहुत पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज्यादा है। तो लाइबिलिटीज निकालना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम मैं दूसरा एक पॉइंट बताऊंगा जो हमारी सबसे बड़ी लर्निंग रही है इस जर्नी में, Yeah. जो मैं बहुत ओपनली बताता हूँ। पीस कम्स विद गुड बाइज। दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते। Hmm. यूल हैव टू से गुड बाय कि ओ यार मैं ये तो कर लूँ, बट मेरा जो अपार्टमेंट लिया था, या दूसरा अपार्टमेंट जो लिया था, तीसरा लिया था इधर, So वो भी let चलता go, है। let go यू हैव करना टू आना लेट गो ऑफ चाहिए. समथिंग अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको समय चाहिए। Wow. और अगर ये एसेट्स और इस पे बात करें, फाइनेंशियल, इस पे मैं बात करना भूल गया। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट वी नाउ टॉक अबाउट इज, मेरे ख्याल से मैंने अपने से रिच आदमी बहुत कम देखे हैं उस एस्पेक्ट में। मेरे पास जितना टाइम है ना, उतना मैंने देखा नहीं। अगर आप ये बात बोले, अब चलो बैठे रहते हैं 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे, मेरे पास टाइम है जो हमारे पास नहीं है। टाइम को हम एसेट देखते नहीं, वेल्थ नहीं देखते। इट इज द रियल फॉर्म ऑफ वेल्थ। It is. It इसलिए आधे is. घंटे भी हमने बात कर लिया, हम कुछ मर्जी एफर्ट डाले कि नेवर कम बैक, तो Yeah. हम I उसको think टाइम को एसेट देखने लगे। मैंने आदित्य कई ना वीडियोस भी बनाए हैं कि रियल लग्जरी यही है कि यू ओन योर ओन टाइम, देन यू आर ईटिंग हेल्दी, यू आर टेकिंग फ्रेश एयर, बिकॉज सिटीज में तो एब्सोल्युटली। तो यू मैम आर पिछले एक्चुअली 3 साल से वी आर रिच. ओनली ड्रिंकिंग स्प्रिंग वाटर जो ओक रूट से आ रहा है। मैंने रईस से रईस लोग सिंगापुर में एंड इंडिया में नहीं देखे, एंड आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इवन इन द यूएस। या. मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस में ऐसे रईस लोग नहीं देखे जिनके पास मेरे जितना टाइम है, जो 3 साल से स्प्रिंग वाटर ले रहे हैं, जो जिस प्योरिटी से खा पी रहे हैं, ऐसे लोग मैंने नहीं देखे कम। तो दैट्स द रिचनेस को भी रियल रीडिफाइन लग्जरी. हम कर सकते हैं, सिर्फ बिल्कुल. फाइनेंस से रिचनेस नहीं हो सकती। तो ये भी मैं एक मैसेज पेरेंट्स को देखाऊंगा, यू रीडिफाइन योर वेल्थ, यू रीडिफाइन लग्जरी। या. तो वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आप देख सकते हैं बिकॉज ये इस सब लाइफ के चीजें जो साथ। है ना, जैसे आप जो रियल लग्जरी जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं दोनों बैठ के, ये लग्जरी ही हमें एक होलिस्टिक हेल्थ भी देती है, एंड दैट इज ऑल्सो अनदर लग्जरी. बिकॉज जब आप सिटीज में इस कियोस में रहते हो, स्ट्रेस के साथ रहते हो, केमिकल, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना खा रहे हो, वही क्लोरीन वाला पानी पी रहे हो, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, बिल्कुल, इट टेक टोल्स ऑन योर हेल्थ. it एंड does, it देन does. या. One of the most healthiest and happiest people I've met have been the most primitive people I've come across in my life. Mostly tribes जो हम इस जर्नी में पिछले 2-3 साल में जिनके अक्रॉस आए। No Okay. bad debts, no financial insecurities, no job stress, no nothing, no cancer, no BP, no sugar, no cholesterol high, no nothing, yet Yeah. happiest and healthiest. तो Wow. हाँ, वो एक एक्सट्रीम ट्रांजिशन है, एंड एट द सेम टाइम जब आप इतनी नेचुरल, इतनी, मैं बोल रहा हूँ फिजिकल, नेचुरल भी इज अ फिजिकल एंगल, व्हेन स्ट्रेस गोज आउट ऑफ द बॉडी, नो। Very good. गर्मा और मैं, हम कई बार बात करते हैं, आर हेल्थ पीक्ड इन मिड 30s, नॉट इन आवर टीन्स। हम अपनी टीन्स में कम हेल्दी थे जितने हम आज हेल्दी हैं। Okay. Great. हमारी पेरेंट्स की कुछ कंडीशन रिवर्स हुई है, बिकॉज जब वो टुगेदर में जो प्यार बन जाता है ना, अपने देर लिविंग विद अस, ग्रैंड चिल्ड्रन सुबह शाम मिल रहे हैं, बीपी की Oh दवाई लेना भूल गए yes. तो 3 दिन भूल ही गए। Yeah. दैट इज हीलिंग, राइट? वही तो हीलिंग है, जब वो लेना भूल गए और बॉडी में कुछ हुआ भी नहीं। That's true. So वो चीज, and in fact we've seen people who've reversed so many conditions just coming to this life without allopathic, without medication, without any surgery. तो वो भी एक बहुत बड़ा हेल्थ बेनिफिट। तो वी एक्चुअली से वी इन्वेस्टेड इन इंश्योरेंस, जो हम कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि खाना हमने अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। खाने के साथ ये de-stressed life is our biggest health Big insurance and our investment. term insurance. Very true. बहुत अच्छा लगा आदित्य आपसे बात करके. टाइम इज जस्ट टिकिंग बाय.
पता ही नहीं चला टाइम का। जी बट एक फन रैपिड फायर करते हैं, उसके बाद वील जस्ट से गुड बाय। सो मैं आपको कोई सिचुएशन बताऊंगी और जी। आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे, जस्ट क्विक में एक क्विक आपका जो इंस्टेंट आंसर है वो बताइए। व्हेन ये चाइल्ड से मुझे पढ़ाई नहीं करनी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ तो पढ़ाई ना करे। तो मस्ती करते हैं, है ना, ये आंसर हो सकता है कि पढ़ाई नहीं करनी। जो करना बिकॉज है मैं ये जो कर। बिलीव करती हूँ कि जब बच्चा रेडी नहीं है ना पढ़ने के लिए और उसको पढ़ाया जाए तो लर्निंग से ही दूर हो जाता है, बहुत सो जब राइट, यू बच्चे को, सेड इट सो बिल्कुल। आई ऑलवेज से मेक किड्स इन लव विद स्टडी टू लर्न। सो जब उनका मन कर रहा है कि पढ़ाई नहीं करनी तो बोलो डोंट वरी, लेट्स हैव फन, सो आई बिल्कुल। लाइक योर आंसर, दैट विल बी माय आंसर आल्सो। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, योर ग्रैंड पेरेंट्स सेज ये बच्चे तो बिगड़ जाएंगे, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? कोई बात नहीं, समय बताएगा। वैसे तो मैं तो बताऊंगी, हमारी हमारी ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी, मतलब बच्चों बच्चों बोल के ही नहीं ग्रैंड सकते पेरेंट्स, हैं, ये यस। बहुत सपोर्टिव है इस जर्नी में। जबकि माय मॉम इन लॉ हैज स्पेंट 40 इयर्स इन एजुकेशन, उसके हाँ बावजूद हाँ हाँ, अनस्कूलिंग है। बट दिस हम बहुत सपोर्टेड थे इस जर्नी में। बट हाँ, मेरे को ये आंसर है कि कोई बात नहीं, समय बताएगा बिगड़ गए नहीं बिगड़ गए। बिल्कुल। आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स जो है बहुत ही अनकंडीशनल प्यार देते हैं, वो तो बोल ही नहीं सकते। पहली बात तो मेरे को यही लगता है बिल्कुल बिल्कुल। कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, बोलेंगे कि भाई दिस कैन नॉट बी देयर स्टेटमेंट। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, सेविंग सिर्फ 6 मंथ की बची है, आपकी वाइफ आपको बोले, गरिमा आके बताए तो हाँ, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? 7th मंथ में भगवान खुद रास्ता अगला खोल देंगे। Oh, that's like very positive. And okay, child wants mobile because all friends have one. एक सर्टन एज तक बिल्कुल नहीं मिल सकता, तो क्वेश्चन आउट ऑफ द क्वेश्चन। अगर वो उस एज का है और तब मांग रहा है, देन व्हाट इज द पर्पस, क्या करना चाहते हो आप इससे? पर एक सर्टन एज तक नहीं मांग रहे तो आप बच्चे को क्या आंसर देंगे कि, मतलब व्हाट विल बी द आंसर? बिकॉज ये आंसर, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी कई पेरेंट्स का है, एंड दे कीप कमिंग बैक टू मी, देन आई वांट टू नो व्हाट विल बी योर आंसर। हाँ, इट्स लाइक मेरा बच्चा गाड़ियों से बहुत फैसिनेटेड है, माई एल्डर वन 7। हम्म। इट्स लाइक वो मुझसे बोले कि मुझे गाड़ी भी चलानी है, तो मैं बोलूंगा इट्स नॉट सेफ फॉर यू। फोन का भी बोलूंगा इट्स नॉट सेफ फॉर यू। Okay, there's an age. एंड I think एज yeah, ऑफ we need to be ऑपरेशन very तो strict about it because आजकल होम लर्निंग एंड स्कूल लर्निंग के कारण हमें मोबाइल्स वगैरह तो बच्चों को देने पड़ते हैं बिल्कुल कि वो बिकॉज बिल्कुल। उससे स्टडी कर रहे हैं, बट देन आई थिंक yeah, we can subtly tell them that it's not safe. इट्स नॉट सेफ। Okay, relative says कि experiment मत करो, तो आपका क्या है? हम साइंटिस्ट है, हमारा कोर ही एक्सपेरिमेंटेशन है। बिल्कुल, मैं आई थिंक मेरा भी ये आंसर होगा कि भाई लाइफ में हम सभी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए हमें, और बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, तो लेट अस डू। जी थैंक यू बिल्कुल। आदित्य। आई थिंक देयर इज लॉट टू लर्न। आई थिंक नेक्स्ट मैं एक और आईजी लाइव करना चाहूंगी गरिमा के साथ, बिकॉज जी आई थिंक बिल्कुल। शी इज मेजर पार्ट, बिकॉज कपल दोनों की ट्यूनिंग होनी चाहिए कि देन यू कैन जी think of this kind of a step. एब्सोल्युटली So I एब्सोल्युटली। think she definitely plays a major role. Please बिल्कुल। congratulate her also that she's a very good parent. And thank you so much for giving your time, your insight, your lot of learning. I'm sure many parents who are looking forward for the slow learning, please reach out to him directly. I think as Garima is giving consultation and you are also, so you guys can help them to श्योर। take that beautiful step. I'll say that. जी हाँ जी। Okay. एंड Thank you. थैंक यू फॉर योर Anything, टाइम हेमा any जी। parting note? और पार्टिंग नोट, सरेंडर एंड पीस कम्स विद गुड बाइस, ये दो लेके आप आगे बढ़ जाएंगे। Beautiful. I think that's very spiritual and very deep. बिल्कुल सही है. Thank you so much and थैंक see यू you. हेमा जी। What an interesting and beautiful conversation. Thank you, Aditya, for such a great information. Sometimes the biggest success is a courage to choose the right thing and to choose different life. Life doesn't ask you to change your address. Sometimes the life only asks for changing your mindset. And that's what I think Aditya and Garima was able to do it. I hope today's conversation have inspired you to make right decision, to choose right for yourself and to create a life which is true to you.
Do share this conversation with others who are planning to choose this courageous step in their life and who are looking forward for similar journey. If you're somebody new to my channel, don't forget to subscribe it and show your support. And do let me know आप अगले पॉडकास्ट में किसको देखना चाहेंगे, कौन सी स्टोरी सुनना चाहेंगे, रियल लाइफ. Until next time, keep choosing happiness and take small step at a time. Take care.